तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो रैंकाइन बेसिस पे जो न्यूमेरिकल लगने हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रैंकाइन साइकिल हम लोग ने डिस्कस कर लिया है कि उसके मेजर कंपोनेंट क्या क्या होती हैं, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप। These are the component of Rankine cycle, and also discuss the graph, TS the graph and PV diagram and HS and HS diagram. Earlier lectures we had discussed about the Rankine cycle, completely discussed about Rankine cycle. Also discussed the heat regeneration, effect of pressure and temperature on the temperature of Rankine cycle. Also discuss the cogeneration power plant and the combined. Okay, now we are going to discuss about the numerical on the basis of the Rankine cycle. The first question is, in an ideal Rankine cycle, saturated steam vapors enter the turbine at 160 bar and saturation liquid exists at the condenser at 0.05 bar. See here is a boiler and here is a turbine. Just take an example, here is the condenser and here is the pump. This is the condenser, this is the boiler, this is the pump, this is the turbine. See the question, in an ideal Rankine cycle, the saturated steam vapor enters at the turbine. Enters at the turbine means P1 is equals to how much, 160 bar, and saturated liquid exists from the condenser means exists from here. After the condenser there is a pressure, that is the P3 is equals to given, something is given, that is P2, taken P2 0.05. This block diagram just for I am taking just this I am taking this block diagram just for the understanding. The net power output of the cycle is 130. Net work output means the turbine cycle plus minus WP, the work point. This is produce the work and this is taken the work. Divide how much work produced and how much work given to the pump. The minus taken net work output is the minus work pump minus from the turbine work, we get the net work output, that is given in the question 130. After that, and determine the cycle, for the cycle thermal efficiency, we can find out the Rankine thermal efficiency and also the okay, and also the steam mass flow rate and specific steam consumption. Right now, the major role playing the major role, steam table play the very major role in the case of Rankine numerical. So everybody must be know how to use the steam table and how to get the enthalpies, specific volumes, specific entropy and specific volume along corresponding to the pressure and temperature, what pressure and what temperature given in the question. Everybody must be know about the steam turbine, how to get data, take data from the steam turbine. I mean, it's mean, I just want to say that you have to know how you can use the steam table. If you're not able to use the steam table, you cannot able to solve the numerical on the basis of the Rankine cycle. So I just advise to all ki learn uh, how to use a steam table for getting the value of enthalpy, like enthalpy, specific volume, entropy, along a corresponding to the pressure and temperature is given in the question, right? So my dear student, you should know how to uh, take taken the value from the steam table. So you must be know about the steam turbine, how to use it. Now the pressure P1 is given, that is the 160 bar. अब हमने स्टीम टेबल से देखा करस्पॉन्डिंग 160 बार के एंथैल्पी एच जी का मतलब क्या हुआ, एक बार देख लीजिए। एच जी हमने पहले ही बताया था कि जो हम ग्राफ बनाते हैं, जो हमारा ये ग्राफ है, जो हमने ग्राफ बनाया, दो लाइन बनाया, ये हमारा वेपर या गैस वाली लाइन है, ये लिक्विड वाली लाइन है। तो हमें जो प्रेशर P1 है, इसके अलॉन्ग हम H1 देख रहे हैं। जो यहाँ पे H1 है, ये देखिए यहाँ पे जो H1 है वही Hg है। वो वैल्यू हमने कहाँ से ये वैल्यू लिया है, स्टीम टेबल से लिया है, समझे। S1 कहाँ से लिया है, वो क्या है, स्टीम टेबल से लिया है।
किसके करस्पॉन्डिंग? 160 बार के करस्पॉन्डिंग। P2 कितना है? 0.05 प्रेशर दिया, इसके करस्पॉन्डिंग क्या ले रहे हैं? स्पेसिफिक वैल्यू ले रहे हैं। कितना दिया हुआ है? देखो F3 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो क्या है? वेट है ना, लिक्विड है। तो हमारा कितना है? 0. कहाँ से मालूम चला? ये हमारा करस्पॉन्डिंग टू द प्रेशर 0.05 बार। फिर हमने Vg3 लिया, ठीक है, और HF3 लिया। तो ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से फाइंड आउट किया? स्टीम टेबल से लिया। स्टीम टेबल से हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। ओके, स्टीम टेबल से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, सिमिलरली जब हमने निकाल लिया, फिर HF3 निकाल लिया, ये सारी जो डेटा है, ये सारा डेटा जो है हमने कहाँ से लिया? स्टीम टेबल से लिया। अब हम प्रोसेस को लेके चलते हैं। 1 to 2 प्रोसेस क्या है? 1 to 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो उसमें हमने देखा कि S1 बराबर क्या है? S2 बराबर क्या है? SF3 प्लस SF, ये हमारे फार्मूला। माई डियर स्टूडेंट, दीज फार्मूलाज you had discussed in the previous semester in basic dynamics, basic thermodynamics in the pure substances, right? आप उस चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा कि हाउ कैन यू गेट दिस फार्मूला, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हाउ कुड यू गेट दिस फार्मूला, कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमको वहाँ से मिला। अब इस फार्मूले के बेसिस पे, अब x तो हमने बताया था कि x क्या होता है? ड्राइनेस फ्रिक्शन होता है। इस फार्मूले की बेसिस पे हमने वैल्यू, सारी वैल्यू हमको यहाँ मिली है। अब हमने प्रोडक्ट x2 की वैल्यू निकाल लिया, x2 की वैल्यू निकाल दिया ड्राइनेस फ्रिक्शन का। अब x2 की वजह से हमने h2 निकाल लेंगे इस फार्मूले। देखिए सारे फार्मूले आपने ना, आपने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा है, वहाँ वो फार्मूले आपको पता होना चाहिए। फिर H3 बराबर क्या होता है? HF3 बराबर H3 होता है, तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया। फिर ये हमारा HM निकाल लिया यहाँ पे इस फार्मूला यूज करके। अब टरबाइन वर्क कैसे निकालना है? मैंने अभी बताया H1 माइनस H2, दिस इज अ टरबाइन वर्क। वो H1 मालूम चल गया, H2 वहाँ से निकाल लेंगे। पंप वर्क HM माइनस H3, वो निकल जाएगा। हीट एडिशन, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो वो हो जाएगा H1 माइनस H4, ठीक है। मतलब हीट एडिशन कहाँ M से लेके कहाँ तक? यहाँ तक होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, तो वो हमारा H1 माइनस H4 ये निकल। अब टरबाइन एफिशिएंसी क्या होता है? जितना नेट वर्क आउटपुट होता है डिवाइड बाई हीट एडिशन। आइडिया आपको पता है। स्टीम फ्लो रेट मैंने फार्मूला बता रखा है, ठीक है। स्पेसिफिक स्टीम फार्मूला, ये हम क्या करें, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आते हैं माय डियर, और आपको करने होंगे। इस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं एग्ज़ाम में और आपको करने होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। सी द क्वेश्चन, ओके, सी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? इन a steam power plant working on ideal Rankine cycle, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट में हम वर्क कर रहे हैं ऑन आइडियल साइकिल, ठीक है। आइडियल रैंकाइन साइकिल में हम लोग वर्क कर रहे हैं। द स्टीम टर्बाइन रिसीव स्टीम एट 10 बार एंड 150 डिग्री सेल्सियस, एंड कह रहा डिस्चार्ज कर रहे हैं प्रेशर को 0.5 बार, ठीक है। अब सेम चीज़ ये देखिए, प्रेशर हमने लिया 10 बार, सैचुरेशन टेम्परेचर ले लिया कितना करस्पॉन्डिंग, ठीक है। करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर P1 दिया हुआ 10 बार, उसके करस्पॉन्डिंग हमने सैचुरेशन टेम्परेचर कहाँ से ले लिया? स्टीम टेबल से ले लिया, ठीक है। कहाँ से ले लिया? स्टीम टेबल से ले लिया, राइट। अब स्टीम जो है वहाँ पे क्या हो गया? सुपर हीटेड स्टीम है, क्योंकि 250 है तो सुपर हीटेड स्टीम दिखेगा। सैचुरेशन टेम्परेचर कितना ले लिया फ्रॉम स्टीम से? 180 के करीब आ गया, ठीक है। नाउ आप अब देखेंगे कि जो है आपको ग्राफ दिखेगा, ठीक है। आप ग्राफ देख लीजिए, आपको ग्राफ कम्प्लीटली ग्राफ दिख रहा होगा, समझ लीजिए उसको पहले।
ठीक है, तो ग्राफ को अपने समझ लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। अब चूँकि टेम्परेचर 10 बार है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको H1 निकल जाएगा। ये हम सब के सब जो है स्टीम टेबल से लिखा हुआ है ना, फ्रॉम स्टीम टेबल, वहाँ स्टीम टेबल से हम इस चीज़ों को फाइंड आउट कर लेंगे। सारी चीज़ें स्टीम टेबल से फाइंड आउट हो जाएंगी। अब देखो, स्टीम टेबल के ही करस्पॉन्डिंग प्रेशर P2 के करस्पॉन्डिंग हम बाकी चीज़ें निकाल लेंगे कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू यूज़ द स्टीम टेबल। ठीक है, यू शुड नो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना अब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यू शुड नो। क्लियर? तो वहाँ से देख लीजिए, अभी मैं सामने होल्ड किया हुआ हूँ, आप फटाफट स्टीम टेबल निकालिए, अपने सामने रखिए और उसको देखिए। थोड़ा सा मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ। स्टीम टेबल निकालिए और वहाँ से मिनिमाइज करके देख लीजिए। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा यहाँ तक, है ना? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से जो डेटा है वो डेटा हमको यहाँ से मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? ये हम निकाल लेंगे सारा स्टीम टेबल से, हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। जो डेटा है वो हम स्टीम टेबल से ले लेंगे। ठीक, फिर सिमिलरली फिर वही काम करेंगे हम, जो है उसके जो वैल्यू है, जो फार्मूला है, वो हम क्या करेंगे, उसी को हम एज इट इज़ वैसे क्या करेंगे, हम उसको यूज करेंगे, है ना? सेम फार्मूला को हम दोबारा यूज करेंगे। जो फार्मूला हमारा है, हमारा कैसे हमने निकाला फार्मूला और x2 कैसे निकाला, इस सब फार्मूला में फार्मूला बेस्ड होते हैं। सब फार्मूला बेस्ड ही आपको लगाना होता है और फार्मूला बेस आप लगाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, फिर आप देख लीजिए कि आप कैसे हीट एडिशन कैसे निकाल रहे हैं, हीट एडिशन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। वर्क पंप का फार्मूला एक ये भी फार्मूला होता है, मैंने बताया था कि पंप हमारा क्या होता है, ओपन सिस्टम होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा होता है VdP होता है। तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नोट डाउन। और नेटवर्क आउटपुट कैसे निकलेगा वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, नेटवर्क आउटपुट कैसे निकल रहा है। फिर आप हीट एडिशन देख लीजिए, हीट एडिशन कैसे निकल रहा है, हीट एडिशन नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप इस तरीके से फॉर्मूला यूज करके थर्मल एफिशिएंसी इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ, ओके, होप सो नोट हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टीम, आप एक बार देख लीजिए क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन को भी माय डियर आप सेम पैटर्न पे ही सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को देख लेंगे और सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हैं, इसको आपको चलिए ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर सलूशन को देख लीजिएगा कैसे हो रहा है। जहाँ डाउट हो वहाँ मुझसे पूछ लीजिएगा। एक बार देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फार्मूले भी नोट करते जाइएगा, जो भी फार्मूला है। देखिए फार्मूला आप किसी एक पेज पे लिख लीजिए, उस एक पेज पे लिख के उसको पूरा लाइन से एंट्रोपी का स्पेसिफिक फार्मूला, एंथैल्पी का स्पेसिफिक फार्मूला, वेट रीजन में क्या होता है, ड्राई रीजन में क्या होता है, लिक्विड रीजन में क्या होता है, सुपरहीटेड में क्या फार्मूला आता है, वो एक जगह एक पेज पे लिख लीजिए आप लोग। तो उससे क्या होगा कि उससे बहुत आसानी हो जाता है चीज़ों को समझने के लिए, है ना। बड़ी आसानी से आप उस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक नोट्स बना लेंगे, नोट्स बनने लगेगा तो सारा चीज़ें आसान हो जाएगा, है ना। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला कैसे होता है, ड्राई सैचुरेटेड केस में क्या होगा, वेट में क्या होगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। और एक जगह रहेगा तो वहाँ से आपको बड़ा इजी हो जाएगा फार्मूला याद करना या फिर उसको प्रैक्टिस करना, बड़ा इजी हो जाता है अगर एक जगह सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाए तो, है ना। एफिशिएंसी का फार्मूला आपको नोट करना है, पंप का वर्क कैसे निकालते हैं, टरबाइन का वर्क का फार्मूला क्या होता है, हीट एडिशन का फार्मूला क्या होता है, इन केस ऑफ प्रेशर के टर्म में, इन केस ऑफ एंथैल्पी के टर्म में, ये सारी चीज़ें एक जगह लिख लेंगे तो उससे क्या होगा, आपको बड़ा ईजी हो जाएगा चीज़ों को करना, जो है बड़ा आसानी से आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाएगा वहाँ पर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो बना है, ये जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है। रिडक्शन पूछ रहा है वर्क आउटपुट में कितना होता है, तो आपने टरबाइन का वर्क आउटपुट निकाल लिया, नेट वर्क आउटपुट निकाल लिया और टरबाइन का निकाल लिया। ठीक है, तो देखा कि जो नेट वर्क है और टरबाइन का है, वहाँ से थोड़ा सा वहाँ से करके फिर हमने ये जो है नेट यहाँ से निकाला, यहाँ पे ये टरबाइन का निकाला। ठीक है, अब इसको हमने वहाँ पे माइनस करके हमने जो परसेंटेज निकाल लिया। ठीक है, एफिशिएंसी रिडक्शन यहाँ पे निकाल लेंगे जितना हमारा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं ना। और लेकिन ये एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सेमेस्टर एग्जामिनेशन में मिला, मैंने अभी बोला ना कि आपको वर्कडन का फॉर्मूला नोट कर लेना चाहिए कैसे कंडक्ट का एंथैल्पी के टर्म में और एज वेल एज इसमें। अब ये चूँकि ओपन सिस्टम होता है ना, ओपन सिस्टम के लिए फार्मूला वर्कडन का आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन VdP होता है, राइट। तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है ना। बाकी सब जो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस का फॉर्मूला यूज कर रहा है, जो आपने उसी थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है 12, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आप और ज़्यादा लगा लीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहता है तो न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस होने बहुत ज़रूरी हैं। वो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए सारे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे लगने हैं, कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो उसको नोट कर लिए होंगे और आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आपको रिकॉल करना होगा। आपको कहीं ना कहीं जो प्रीवियस सेमेस्टर में आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उसको आपको रिकॉल करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो फार्मूला को प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंसेस दोबारा देखना पड़ेगा उन फार्मूला में, तब आपको वेंटाइन साइकिल, फिर आपको बाइनरी वेपर साइकिल में जो न्यूमेरिकल्स लगने हैं वो देखने हैं। तो उन सबको आपको एक बार जो है कहीं ना कहीं जो है पूरा जो है स्टडी कर लेना है, फार्मूला उसको देख लेना है ना, कि वेट रीजन में क्या है, ड्राई रीजन में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखना पड़ेगा, पूरा का पूरा आपको देखना पड़ेगा, राइट। ठीक है, ठीक है। इफ़ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। और बाकी आपको मेरी ईमेल आईडी भी पता है, तो आप वहाँ पर मेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्टेबिलिटी हो। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस न्यूमेरिकल और नॉट एनी टॉपिक related to applied thermodynamics. Okay, okay.